All of you, please go on mute. Okay. A warm good afternoon to all of you. I welcome you all on behalf of Weatherviews Welfare Society's Institute of Pharmacy and Research, Badnera, to our today's guest lecture on homeopathy, a story of controversies. Homeopathy, as the word literally means, homeo means similar, eo means symptoms of the patient, and pathy means suffering. This is a German word which was coined by the father of homeopathy medicine, Dr. Samuel Hahnemann. This system of medicine has stood the test of time since it was commissioned for the cure of patients in 1790. Although homeopathy may be one of the most popular, but also it is a controversial system of medicine. Some describe it as a quackery, irregular medicine, or a complementary and alternative medicine, whereas some swear by its great power and effectiveness. Some say that homeopathy has a placebo effect, while for others it is a scientific system of medicine which works and cures. According to Dr. Peter Fisher, Clinical Director of Research at Royal London, homeopathy, when integrated with the standard care, is safe, popular with patients. It improves the clinical outcomes without increasing costs and reduces the use of potentially hazardous drugs, including the antimicrobials. As for the National Institute of Health, there's a little evidence to support homeopathy as an effective treatment for many specific conditions. So there are many controversies related to homeopathy medicine. To know how the homeopathy works, its principles, and how it cures the patients, we have the expert from the field, Dr. Rahul Kolamkar sir. Let me first introduce to our guest speaker for today, Dr. Rahul Kolamkar sir, who is working as a homeo consultant at Elite Hospital, at Elite Homeo Clinic Multi-Speciality Hospital at Amravati. Sir has completed his graduation from PGN Homeopathic Medical College, Amravati in the year 2001. He completed his post-graduation from TKMM Homeo College, Aurangabad in the year 2003. He received the research certification from Harvard Medical School in 2012. He received the certification in ADHD and genetics from Harvard Medical School in 2014. Thereafter, he established his private limited company, Light Healers Homeopathy and Research Institute, in the year 2014. Sir is practicing since 2004 in Amravati and since 2014 in the Navi Mumbai, Nerul. Currently, he's having a complete setup for online and telemedicine. Welcome, sir. It's a great pleasure for us to have you with us today. Now, I request Dr. Rahul Kolamkar, sir, to please commence the lecture. Yeah, thank you very much. Good morning to all of you, all the students who has connected with me right now. It's been a great year, and I'm really grateful to IOPR College who has given me this chance. Dr. Sachin Digres who has given me this opportunity to present myself in front of this very curious students group. And thank you, Neha ma'am, for giving me support and organizing this webinar rather. Yesterday it was a hectic one because I was not able to set up my WebEx meeting, and बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होते रहती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. So anyway, technology is very weird. Shall I go in mixed way, Hindi and English? Yes, sir. As per your convenience, sir, both be comfortable. ओके, तो वैसे भी मीन्स टेक्नोलॉजी काफी वियर्ड है. मतलब अभी मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि इस समय मैं एक मीटिंग एज अटेंड कर रहा हूँ जूम पर, और यहाँ पर मैं वेबएक्स पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. वियर्ड. सो थिंग्स टाइम हम मल्टीटास्किंग करना सीख. सो उसका रीजन इसलिए बता रहा था. लास्ट मंथ व्हेन आई वाज प्रेजेंटिंग इन इंजीनियरिंग, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी जरूर अच्छे बार वेबिनार को अटेंड कर लेते हैं, जैसे अभी मैं भी अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन आई एम प्रेजेंटर ये. सो नॉट लिसनिंग, दे हैड अ गेम डन फॉर दैट. सो उन्होंने क्या किया कि एक 10 मिनट्स का एक सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने बोला कि टीचर भी कभी स्टूडेंट था, एंड देयर टीचर यूज्ड टू व्हाट वी कैन से शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज एन स्टूडेंट. और जब अपने प्रिंसिपल ने उन्होंने 10 मिनट में अपना खुद का जो एक स्टूडेंट लाइफ का जो शेयर किया, उसके बाद में उनको पता चला कि अपना प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्यों है करके. So that way, students automatically get connected with teachers and principals also. So that was a nice initiative in that engineering college. I hope
आपके यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी because I'm seeing 114 participants are over there. So this is really great that it's a really curious uh, group over here. So shall we start with the presentation? Sure, sir. I will give you access, sir. Yeah. So are you joined with the headphones? Voice is breaking in between. Just a second. Yeah. Hello. Yes, sir. So you can share now. I have given you the access. मेरी स्क्रीन स्क्रीन Hello. Yes, sir. Yeah, my screen visible. Hello. Is it okay right now? Yes, sir. Okay. So, friends, this topic we have controversy. During the presentation, I can elaborate why it is has controversial. But first of all, we should get introduced to what homeopathy is. So, just मुझे ये पूछना था कि कितने स्टूडेंट्स ने इससे पहले होम्योपैथी कभी ट्राई किया है आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, की आवाज है बट एनीवे, सो ये कितने लोगों ने आर्सेनिक के बारे में, आर्सेनिक की होम्योपैथिक दवाई जिसको कोविड नहीं होता है? ओके, सो आर्सेनिक, कभी आपने सोचा कि भी आर्सेनिक किस तरीके से कोविड या कोरोना में इस तरीके से असर कर सकता है? फार्मेसी स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं हम, एक पॉइंट हो सकता है या साइंटिफिक स्टडी हो सकती है कि हाउ वर्क्स इन सच टाइप ऑफ कंडीशन। कोरोना एक बहुत ही नया किस्म का वायरस है, स्टिल 200 साल पुरानी दवाई इसके ऊपर में वर्क कर रही है। सो हाउ इट कैन बी, जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, आज का जो टॉपिक है मैं कुछ आपका फार्मास्यूटिकल वे से भी चलता हूँ कि हाउ फार्मास्यूटिकली दिस मेडिसिन आर बीइंग प्रिपेयर्ड, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कैसा होता है और कैसे ये दूसरे पैथी से अलग है। लेकिन पहले हम ये समझ के चलते हैं कि व्हाट होम्योपैथी इज स्पेसिफिकली, ठीक है? तो होम्योपैथी को पहले समझने के लिए, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि सिमिलर पैथी, इट इज आल्सो कॉल्ड सिमिलर, इसका अपोजिट क्या होता है? होम्योपैथी का अपोजिट पैथोलॉजी, अपोजिट मींस पैथोलॉजी, आप अपोजिट तरीके से ट्रीटमेंट करते हो उसको हम पैथोलॉजी, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग हो रही है, एंटीबायोटिक दवाई दे, क्या है उपचार करने वाली दवाई, किल करने वाली दवाई, ठीक है? तो दिस इन व्हाट इज द पैथोलॉजी, अपोजिट वे में जाकर आप उस चीज को हम एलोपैथी बोलते हैं, ठीक है? सो होम्योपैथी को समझने के लिए ये
चीज हुई। उसके बाद में जब हम होम्योपैथी की तरफ आते हैं, होम्योपैथी में सिमिलर चीज होती है, जहाँ पे सेम सिम्टम्स डेवलप होते हैं, और पैथोलॉजी के अंदर में जैसे सेम सिम्टम्स है, उसी सिम्टम्स को डेवलप करने वाली मेडिसिन का जहाँ इस्तेमाल होता है, उसको होम्योपैथी कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ, वो एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर में उसी तरीके के क्रिएट करती है जिस तरीके के डिजीज पर्सन के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन को किसी को जॉन्डिस हो गया, तो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन के अंदर में प्रूविंग की जाए, प्रूविंग की जाए, जैसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, जैसे केमिकल मेडिसिन के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, सो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर में जैसे ये होता है, वैसे होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग होता है। सो जब हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर में ड्रग प्रूविंग करते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर में एक पर्सन को अगर हम जॉन्डिस से रिलेटेड कुछ मेडिसिन देते हैं, will develop symptoms just like jaundice. It won't be a disease, but the symptoms will be like that. And that's why इसको similar pathos बोलते हैं. Similar pathology is equal to homeopathy. ठीक है? तो मेरे पास कुछ फन फैक्ट्स भी है, जैसे कंट्रोवर्सीज तो है ही बोलना, लेकिन मैं जस्ट कुछ फन फैक्ट्स के ऊपर से चलता हूँ। According to WHO data, that is World Health Organization, homeopathy is the second most popular way of treatment in the world. दो कंट्रोवर्सीज है होम्योपैथी को लेकर कि ये कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, ये इतनी सस्ती क्यों है, या इतनी ऐसे एक जैसे दिखती है, या स्टिल इट इज सेकंड मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ ट्रीटमेंट। होम्योपैथी इंडिया में भले पढ़ना पड़ेगा, बट सेकंड मोर आई 100 मिलियन करते हैं। Homeopathy is one of the therapeutic way of treatment modern world or modern science हम बोल सकते हैं, because it has been invented in 1796। 1796 मतलब हार्डली 200 साल हो चुके हैं, 200 साल पहले इसका इजाद हुआ था। बाकी सब प्राचीन जैसे हमारा आयुर्वेदा तो हजारों साल पुराना, he was discovered around 400 to 500 years back। होम्योपैथी को सिर्फ 200 साल हुए, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट थेरापेटिक वे ऑफ सिस्टम है। अगर हम कुछ डेटा को देखते हैं, जैसे जो यूज होती है, एंड इंडिया के 2.25 लाख डॉक्टर्स है। अलॉन्ग विद दैट डेढ़ बोल सकते हैं हम कि 15 करोड़ के आसपास में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी का इंडिया में। यूएस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से धीरे धीरे काफी इसका प्रचलन भी बढ़ रहा है। जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, जर्मनी, फ्रांस जैसी कंट्रीज में होम्योपैथी का प्रचलन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। काफी लर्नेड लोग इसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। जैसे अभी कोविड टाइम्स में अगर आपने सुना रहेगा कि मिस्टर राहुल बजाज जो है, बजाज कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था ऑल ओवर महाराष्ट्र। उन्होंने उनके कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट किया पुलिस वालों के लिए, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो थे, उन सब लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी तरफ से। होम्योपैथी को होम्योपैथी ज्यादा प्रचलित है। अगर हम ये देखते हैं कि 100 लोग अगर होम्योपैथी है, तो 100 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति इंडिया में होम्योपैथी लेता है। जैसे में भी हुआ कि ने आवाज लगाई है, तो ये 2019 का है, बिकॉज आफ्टर 2019 सब कोरोना की वजह से सारा डेटा जमा करना बंद हो चुका है। सो इट्स लेट वन, बट कोविड क्राइसिस काफी लोगों ने होम्योपैथिक ट्राई करी है, इवन आई हैड, बट वही हम France में around 62 people are homeopathy out of 100। Okay, so that is one। Then Italy में भी काफी पेशेंट्स होम्योपैथी प्रेफर करते हैं। जापान में भी होता है, देन जर्मनी में भी काफी बढ़ रहा है। सो दिस इज व्हाट होम्योपैथी का धीरे धीरे प्रचलन बढ़ते जा रहा है। लेकिन सिर्फ होम्योपैथिक यूजर्स ही नहीं, बट अगर हम डॉक्टर्स की भी बात करें, तो हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग होम्योपैथी। सो फ्रांस में फ्रेंच डॉक्टर्स जो है, अराउंड 100 डॉक्टर्स में से 70 डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। इंडिया में यहाँ पे झगड़े डॉक्टर्स करनी, बट ब्रिटिश हो गया, तो अराउंड
50% लोग इसको प्रेफर करते हैं, स्कॉटलैंड या ये सब जगह इस्तेमाल होती होम्योपैथी की। अगर हम कुछ स्पेसिफिक बड़े इसको ये करते हैं, प्लेयर्स या फिर जो बड़ी सेलिब्रिटीज है जो होम्योपैथी को एंडोर्स करते हैं, जो होम्योपैथी यूज करते हैं, बारे में तो इन महाशय को जानता है? Who is football player. He was a football player basically. So is डेविड बेकहम। डेविड बेकहम का नाम सुना ही रहेगा काफी लोगों ने। फुटबॉल के दुनिया का काफी प्रचलित नाम है, काफी फेमस नाम है, and he is the one who is using medicines and पेन किलर्स की वजह से कई बार हेलो हेलो, हाँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, द वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन, बीच बीच में बहुत ब्रेक हो रहा है वॉइस, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा है सर। आई थिंक कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। हेलो, यस सर, is it clear now? now it is clear. In between it breaking. Okay, so So now it, okay, so starting with David Beckham, ये फुटबॉल प्लेयर को आप सब लोग जानते ही रहेंगे। सो ही इज ब्रिटिश फुटबॉल प्लेयर और काफी गिरानी हस्ती है फुटबॉल की गेम के अंदर। He uses homeopathy specifically for his all sports injuries and सब चीजों के लिए काफी होम्योपैथी का इस्तेमाल करता है। He always promote taking homeopathy for that. दूसरा अगर हम देखते हैं, इनको काफी लोग जानते रहेंगे। She is Elizabeth of Great Britain. रॉयल फैमिली जितनी भी है ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है, सभी के सभी लोग होम्योपैथी का काफी इस्तेमाल करते हैं इन सब चीजों के लिए। तो प्रिंस चार्ल्स हो गए या फिर डायना मान जो थे, ये सब लोग काफी इस्तेमाल करते थे होम्योपैथी का। उनको कोई जानता है? फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड इज बोल्ट। Usain Bolt. या उसेन बोल्ट। तो उसेन बोल्ट भी अपनी इंजरीज के लिए होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज जो भी बाकी के जो पेन किलर्स और इन सब चीजों की वजह से जो तकलीफें होती है, सो उस वजह से कई बार ये लोग कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन लिया जाए। इस बंदे के लिए तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आई थिंक सो एवरीबॉडी नोज हु इज ही। या ही इज स्टीव जॉब्स, करेक्ट। स्टीव जॉब्स अपने आखिरी समय में उन्होंने काफी होम्योपैथी और अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया व्हेन ही वाज diagnosed with his pancreatic cancer. So to extend his life or having a less
complications, he used a lot of homeopathic medicines. That this is Bill Clinton and Hillary Clinton, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का इस्तेमाल करते हैं और प्रमोट भी करते हैं. या टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक और काफी विंबलडन में इन्होंने काफी अपना रखा है. टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है. एंड ही आल्सो यूजेस होम्योपैथी. मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके जो फिजिशियन है वो एक इंडियन होम्योपैथिक डॉक्टर है. डॉक्टर श्रीपाद खेड़कर मुंबई के हैं एंड उनसे होम्योपैथिक दवाइयां लेते हैं. नोवाक जोकोविक. अब सिर्फ आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं करते, इंडिया में भी काफी लोग हैं जो होम्योपैथी को सपोर्ट करते थे और अभी भी करते हैं. इनको इंट्रोडक्शन करनी है. महात्मा गांधी ने सबसे पहले होम्योपैथी को अपनी इंडिया में रेगुलराइज किया. उन्होंने गवर्नमेंट को भी किया कि आप इस्तेमाल करिए. ब्रिटिश समय से ही उन्होंने होम्योपैथी को काफी प्रचलित भी किया. उनके साथ के दोस्तों को भी उन्होंने होम्योपैथी के लिए प्रेफर किया था. श्री रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल में होम्योपैथी काफी चलती है. सो रविंद्रनाथ टैगोर ने होम्योपैथी को आज के जमाने में अगर हम देखने जाए, इनको कोई जानता है? एक्ट्रेस है सर. एक्ट्रेस है मतलब So psychological conditions are used to develop she's consistent taking. So सोनू भी अपने आवाज के लिए काफी हद तक सोनू भी अपने आवाज के लिए काफी हद तक होम्योपैथी प्रेफर करते हैं. This is Ritesh Deshmukh and Genelia. इन्होंने तो एक होम्योपैथिक कंपनी को भी स्पॉन्सर कर रखा है. They had invested a lot of their money in homeopathic industry. You can search it on Google. So सब चीजें बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना था कि अच्छा हाँ ये व्यक्ति को कोई जानता है. Who is he? Any guesses? Yes, he is founder of homeopathy. Dr. Christian Frederick Samuel Hahnemann. He was a MD person, means 1700s में डॉक्टर एमडी रहना बहुत बड़ी बात होती है. और सबसे बड़ी बात उस समय सिर्फ एलोपैथी चल रही थी, दूसरी तो कोई पैथी नहीं हो पाती थी. सो ही वाज अ एमबीबीएस एमडी पर्सन who had founded homeopathy. So ये एक बहुत बड़ा वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि भैया जब एलोपैथिक पर्सन ने होम्योपैथी फॉर्म करने की जरूरत क्या पड़ी. सो ही फाउंडेड होम्योपैथी इन 1976. तो होम्योपैथी क्यों फॉर्म किया गया उसके पीछे एक बहुत ही है. जब डॉक्टर हैनेमन ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इसके अंदर में मेडिसिन के अंदर, ही वाज प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर इन जर्मनी. सर क्या होता था कि जैसे कि हम पैरासिटामोल दे देते हैं, बुखार पैरासिटामोल दे दो या फिर आप लिम्सोलाइड दे देते हैं या फिर आप आइबुप्रोफेन दे सकते हैं. मेडिसिन सभी आज मिलती है. उस पेनिसिलिन वाज आल्सो not that popular in those times and all. तो ये सब चीजें थी. सो उस समय बुखार अगर किसी को आ जाता था तो एक बड़ा ही खतरनाक तरीका इस्तेमाल किया जाता था उसका बुखार उतारने के लिए. और वो तरीका ये था. ये फोटो में अगर आपने
एक लेडी है जिसके कर दिया गया है और ब्लड ब्लड सो दैट बुखार अपने आप कम हो जाएगा। अगर हम आज मॉडर्न साइंस को देखते हैं तो मॉडर्न साइंस फीवर जो होता है फीवर के अंदर में हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, जो ब्लड कंजेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो उस समय भी ये एक कथा थी कि भाई ब्लड कंजेशन बढ़ गया, ब्लड जरूरत से ज्यादा हो गया तो आप कट कर दीजिए, उसको बॉडी में से निकाल दीजिए, आपका फीवर कम हो जाएगा। उस समय इन्फेक्शन को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं हुआ करती थी, सो उस वजह से ये सब चीजें होती थी। जो आप देख रहे हैं इसका औजार लकड़ी या लोहे के काम में नहीं बट इंसानों पर यूज होते हैं सो दैट इंसानों का ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये सारे औजार उस समय के डॉक्टर लोग यूज किया करते थे। तो एक कारपेंटर और डॉक्टर को ज्यादा फर्क नहीं हुआ करता था उस समय। तो ये सब चीजें जब डॉक्टर हैनेमन ने देखी तो पेशेंट उसको ऑलरेडी काफी तकलीफ हो रही है, उसको काफी बीमारी है, तो बीमारी की वजह से तकलीफ में है। उस समय उसके उसके ऊपर में इस तरीके के सारे औजार और इस तरीके का सारा ब्लड हीटिंग एक्सपेरिमेंट्स करना ये उसकी तबीयत को और ज्यादा खराब कर सकता है। तो हमको कोई और तरीका ढूंढना चाहिए जो थोड़ा सा सोबर हो, थोड़ा सा जेंटल हो, थोड़ा सा पेशेंट के सफरिंग्स के हिसाब से हो, ना कि बिल्कुल ये ऐसा हो गया तो उसको वैसा कर दो, ऐसा मीन्स देयर वाज नो लॉजिक अबाउट द ट्रीटमेंट इन दोस डेज। तो वहां से होम्योपैथी का पहला बुक्स लाइक ग्रीक मेडिसिन, आयुर्वेदा भी पढ़ा है उन्होंने, चाइनीज मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को पढ़ा उन्होंने, देन इटालियन मेडिसिन को भी उन्होंने सब अलग अलग तरीके की चीजों को पढ़ा कि भाई लोग जो घरगुती इलाज करते हैं किस तरीके से सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं और इन सब चीजों को ब्लेंड करके हम कैसे एक नई सिस्टम को बनाया जा सकता है। वैसे ये आज के जमाने का थोड़ा सा टॉर्चर वाला चीज है इंजेक्शन, और काफी बच्चे इससे डरते हैं, तो इसी वजह से बच्चे होम्योपैथी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा time करते हैं। तो ये इंजेक्शन के डर की वजह से वो एक चीज थी। तो ये जो टॉर्चर वाली ट्रीटमेंट हुआ करती थी वो ट्रीटमेंट को कहीं तो कहीं जेंटल सुपर करना सो दैट पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर सके और इन सब चीजों को अपने डिजीज को एक इजी वे में कर सके, हील कर सके। हीलिंग ऑफ द प्रोसेस बेसिकली ये सारे ट्रीटमेंट जो होती है ये ज्यादातर पैलिएटिव ट्रीटमेंट होती थी, आपकी क्यूरेटिव या हीलिंग ट्रीटमेंट कम होती थी, पैलिएटिव ज्यादा हुआ करती थी। सो ये पैलिएशन होते हुए हीलिंग की तरफ कैसे जा सकते हैं, वहां से होम्योपैथी सबसे पहले होम्योपैथी बनाई जा सकती है। ठीक है, so that was first thought when Dr. Hahnemann came with that। धीरे धीरे जब वो पढ़ रहे थे तो उस दरमियान उनके पढ़ने में एक किताब आई, दैट वाज क्यूलेंस मटरा मेडिका। मटरा मेडिका अगर मैं आपको बताऊं तो मटरा मेडिका एक किताब होती है जिसके अंदर में अपने दवाइयों से रिलेटेड सारी चीजों का, जैसे डिक्शनरी होता है तो डिक्शनरी के जैसा एक सारे दवाइयों के छोटे छोटे डिटेलिंग्स दिए जाते हैं, उसको मटरा मेडिका कहा जाता है। तो ये मटरा मेडिका जो होता है क्यूलेंस मटरा मेडिका उन्होंने पढ़ी, जिसके अंदर में उन्होंने एक पेड़ के बारे में बताया था जिसका नाम था सिंकोना बार्क। सिंकोना नाम का एक पेड़ था जिसका छाल जो होती है, बार्क जो होता है, उस बार्क को अगर हम भिगो कर अगर हम लेते हैं तो टिपिकल मलेरिया जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। एंड हैनेमन वाज एस्टोनिश्ड विद दैट कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर मैं किसी पेड़ की छाल खा लूं तो मुझे मलेरिया हो जाएगा। बोले ये तो कुछ तो गलत चीज है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। सो ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि सिंकोना बार्क की छाल मंगाई, उसके वो छोटे छोटे और काफी उसको भिगो कर सब ये बनाया और 4 दिन तक वो छाल खाते रहे। एंड slowly and slowly he started developing symptoms like fever, malaise, एकदम feel with rapid वगैरह इस टाइप के। और धीरे धीरे उनको समझ में आने लगे कि yes he was developing symptoms of malaria and he was really astonished कि एक पेड़ में बिना मच्छर काटे भी मुझे मलेरिया जैसे सिम्टम्स कैसे आ सकते हैं। एंड देन ही स्टार्टेड रीडिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। अब उन्होंने सिर्फ उसको पढ़ना नहीं, उसको समझना शुरू किया और उनको समझ में आया कि काफी ऐसे पेड़ हैं या अलग अलग चीजें हैं जो इस तरीके की सिम्टम्स और बीमारियों को मिमिक करते हैं। और वहां
हमको समझ में आया कि हम अगर मलेरिया के पेशेंट सिंकोना दिया जाए तो उसका मलेरिया ठीक किया जा सकता है। सो हमको एंटीबायोटिक्स या ऐसी चीजों की जरूरत न पड़ती है, हम उसको नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। ये उनको सबसे पहली बार उस समय समझ में आया। एंड देन ही स्टार्टेड फाइंडिंग ऑन डिफरेंट सोर्सेस कि भाई क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं दवाइयों। Here are the sources of homeopathic medicine. First was the sources, mineral sources. Third was animal sources. यूज होता है, यूनानी में यूज होता है, होम्योपैथी में यूज होता है, आयुर्वेदा में भी होता है। तो स्नेक पॉइजन काफी इस्तेमाल होते हैं, इवन एलोपैथी में भी यूज होता है। बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज, मक्खियां या फिर एनिमल्स से भी जो ये होते हैं वहां से भी दवाएं बनती है। these are the main sources of homeopathy. बट उसके अलावा भी कुछ सोर्सेस है, लाइक ब्लड और डिस्चार्जेस। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स जो होते हैं, ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं, वो भी इसके अंदर में यूज होते हैं। उनके जो डिस्चार्जेस होते हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स, एंजाइम्स जो होते हैं, उसके ऊपर से भी कुछ दवाइयां बनती है जिसको हम नोजोर्स या सार्कोड्स बोलते हैं। प्लांट से प्लांट वाली मेडिसिन बनेगी, मिनरल से मिनरल वाली, एनिमल किंगडम से एनिमल वाली। और ये जो ग्लैंड जो बनती है उसको सार्कोड्स या नोजोर्स बोलते हैं। जैसे कि ट्यूबरक्युलिन नाम की एक दवाई है जो ट्यूबरक्युलोसिस के बैक्टीरिया से बनाई गई है। जैसे हम वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन के अंदर में आपने सुना रहेगा कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दो किस्म के वैक्सीन इंडिया में अभी दिए जा रहे हैं। इसमें से कोवैक्सीन एक इस प्रकार का वैक्सीन है जिसमें हमें एक अटेन्यूएटेड वायरस को डाल दिया गया है। उस वायरस के बेसिस पर आपकी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके आपको दवाइयां दी जाती है। तो होम्योपैथी में भी इस तरीके के चीजें की जाती है, बट वो जो ग्रॉस लेवल पर जो दिया जाता है उस तरीके से नहीं, उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, वो जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिफ्थ तरीका होता है दैट इज रेडिएशन। यस, रेडिएशन से भी दवाइयां बनती है। जैसे हमारे इसमें एक्सरेज भी है, देन जो न्यूक्लियर रेडिएशन होती है उससे भी बनती है। इस टाइप के भी दवाइयां यूज होती है जो अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में यूज होती है। सो साइकोलॉजी से लेकर तो बड़ी बड़ी पैथोलॉजीज तक के भी इस्तेमाल होती है। सो ये these are the sources। जब एनिमल ने ये सब चीजें पढ़ना शुरू किया और उनके पढ़ने में आते गए, जैसे जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते गए, उनको पहले तो उन्होंने अपने किचन से शुरुआत करी। काफी हद तक के तो दवाइयों को जैसे आयुर्वेदिक हिसाब से जैसे हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे, ऐसे ही उन्होंने भी बहुत सारी चीजें किचन से भी दवाइयां बनते गई कि जैसे नमक से दवाई बनती है, हमारे इसमें नाइट्रोजन नाम की एक दवाई है जो नमक से बनती है। तो इस टाइप की धीरे 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 प्याज से दवाइयां है, एलियम सल्फा नाम से, एलियम सटाइवा है, जिंजीबर है जो अदरक से बनती है। तो ऐसे वही दवाइयां धीरे 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 प्लांट किंगडम से आने लगी, मिनरल किंगडम से आने लगी। फिर जो जो दवाइयां फेमस थी एनिमल किंगडम से वो भी बनने लगी। एंड देन केम अबाउट नोजोर्स एंड ये इम्पोर्ट बिलियर जहाँ पे रेडिएशंस का इस्तेमाल होता था। तो दीज वर द सोर्सेस। लेकिन जब दवाइयां बन गई और जब एनिमल इन दवाइयों को देने लगे, मतलब जो लेने के बाद बढ़ जाते थे बिकॉज इसका बेस जो था सिमिलर था। सिमिलर मतलब अगर किसी को बुखार आया है तो बुखार बढ़ाने की दवा उसके अंदर में दी जा रही है, जिसकी वजह से उसका सीवियर बुखार बढ़ जाता है और जो आज के मॉडर्न कंट्रोवर्सी के लिए सबसे ज्यादा बोला जाता है डाइल्यूशन करते हैं, जबकि डाइल्यूशन डायलॉग होते जाता है, बट बाकी की जो स्पेसिफिक चीजें होती है वो धीरे धीरे उसका पावर एनहांस होते जाता है। पावर एनहांस कैसे होता है? सो पावर एनहांस करने के लिए जो चीजें यूज होती है, उसका जो टेक्निक यूज होती है उसको हम ट्राइचुरेशन एंड सप्रेशन बोलते हैं। सो ट्राइचुरेशन ये बहुत ही कॉमन, आपने भी आपने किया रहेगा या इवन 11 12 में भी हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे केमिस्ट्री लैब्स के अंदर, तो ट्राइचुरेशन एक पल्वराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम किसी चीज को पाउडर फॉर्म में करते हैं। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है होम्योपैथी में जब हम ट्राइचुरेशन करते हैं।
यहाँ पर एक एग्जांपल बताने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 1 ग्राम ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम विच यू हैव टू मेक मेडिसिन। अब फॉर एग्जांपल हम सल्फर लेते हैं, सल्फर से अगर हमको दवाई बनानी है तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर ले लीजिए एंड 99 ग्राम्स ऑफ मिल्क, शुगर ऑफ मिल्क हम बोलते हैं जिसको। ये न्यूट्रल व्हीकल होता है, एक ऐसी चीज जैसे अभी अगर आपके फार्मेसी की भाषा में अगर मैं बताऊं तो जैसे हम क्रीम्स भी जो यूज होती है तो क्रीम्स के अंदर में जो जैसे मेट्रोवेट क्रीम हो गया या फिर कोई भी जो मेडिसिनल क्रीम होती है उसके अंदर में क्रीम उसका व्हीकल होता है और उसके अंदर में दवाई जो होती है वो बहुत नॉमिनल फॉर्म में होती है। तो व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है, दीज आर न्यूट्रल व्हीकल्स। तो ये न्यूट्रल व्हीकल जो होता है शुगर ऑफ मिल्क उसका इस्तेमाल होता है 99 ग्राम। इसको ट्राइचुरेट किया जाता है विद 100 टाइम्स, उसको सर्कुलेट करके उसको ट्राइचुरेट करके या पोलराइज करके उसको उस बाद में के बाद में जो फॉर्मूला होता है उसको उसमें से 1 ग्राम निकाल लिया जाएगा, वो 100 बना होगा तो उसमें 1 ग्राम निकाला जाएगा। अगेन 99 ग्राम्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क उसमें ऐड किया जाएगा और फिर उसको अगेन 100 एक्स से उसको 100 टाइम्स उसको पोलराइज करेंगे रोटेशनल मैटर में। ये अभी 2x बन गया, फिर 2x के बाद में फिर से 1 ग्राम उसमें से निकाला और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये धीरे धीरे जो सल्फर का जो क्वांटिटी है वो और कम होते जा रही है, बट उसका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है इस तरफ, जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसपे से। सो ये एक तरीका हो गया ट्राइचुरेशन। दूसरा तरीका होता है सकशन। अब ये ट्राइचुरेशन तो बहुत लेंदी और फिजिकल प्रोसेस में बहुत तकलीफ हो जाएगी क्योंकि दवाइयां हजार हजार पावर की बनती है, तो कितना करते रहेंगे। तो उसके अंदर में एक बार तरीका उन्होंने ढूंढ के निकाला था, दैट वाज सकशन। अब सकशन के अंदर में भी सेम चीज होती है बट ये लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेन अल्कोहल जिसको बोलेंगे हम या रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसको बोलेंगे, जो बिल्कुल भी न्यूट्रल इफेक्ट होता है उसका बॉडी के अंदर में। आप कितना भी उसको आप ये करें दवाई के साथ में भी उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, इट इज टोटली न्यूट्रल वन। सो न्यूट्रल अल्कोहल लिया जाता है इसके अंदर 99 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल, वन पार्ट ऑफ substance which we are using, medicinal substance। एंड सेम तरीका उसके अंदर में इस्तेमाल होता है कि भाई आप 100 टाइम्स इसको जो एक रबर पैड के ऊपर में आप उसको सकस करते हो, वो एक पोटेंसी हुई। उसके बाद में फिर उसमें से ml निकाला, फिर आगे के इसमें फिर से 99 ml ऑफ आप रेक्टिफाइड स्पिरिट ऐड करते हो और धीरे धीरे ये डाइल्यूशंस बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे लोग इस चीज को ये सोचते थे कि भाई दवाई डाइल्यूट हो रही है, इट इज गेटिंग डाइल्यूटेड। सो अगर आपने इस बारे में सुना रहेगा एवोगाड्रो के बारे में, तो उन्होंने बोला था कि कोई भी चीज को अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो वो 10⁻27 यहीं तक के हमको दिखाई देती है, उसके आगे तो उसका वजूद जो है वो गायब हो जाता है। ये काफी पुरानी थ्योरी थी बट आज के पोजीशन में सभी को पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, 10⁻200 तक के बाद आ चुकी है। होम्योपैथिक मेडिसिन थैंक्स टू भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर करा, इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए होम्योपैथिक मेडिसिन पर। उन्होंने मेडिसिन को अराउंड 200 पोटेंसीज तक की होम्योपैथिक दवाइयां के अंदर में जो दवाई का पार्टिकल होता है वो दिखाई देता है उसके अंदर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लेवल तक के भी उन्होंने वहां पर एक्सपेरिमेंट करके देखा एंड दे कैन डू दैट यस these medicines have medicinal quantity in them। so यहाँ से थोड़ी सी theory change हुई, यहाँ से गेम चेंज हुआ। बट प्रॉब्लम ये था कि जैसे जैसे होम्योपैथी फेमस हो रही थी बिकॉज इट वाज बहुत नॉमिनल कॉस्ट में मिलती है होम्योपैथिक दवाइयाँ, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा काफी कम होता है, फार्मास्यूटिकल कारपोरेट कंपनीज का इस्तेमाल एंड कारपोरेटाइजेशन बहुत कम हुआ है उसके अंदर में। इस वजह से प्रोडक्ट्स डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे पर्सनलाइज मेडिसिन होती है। इस वजह से जो बड़ी कंपनीज थी उनका नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा डिफेंड करना शुरू किया। उन्होंने कुछ चीजों को उखाड़ कर नई नई तरीके से उसको प्रेजेंट करना, नए क्वेश्चन उभारना। तो ये सब चीजें चल रही है अभी भी कई जगहों पर, इसके ऊपर में कॉन्फ्रेंसेस चलती है, बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंटेशंस को दबा दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेजेंटेशंस बाहर निकलते हैं बट दे आर नॉट वेल रिकॉग्नाइज्ड। अब होता क्या है यहाँ पर कि जनरल पब्लिक जाए तो जाए कहाँ। तो ऐसे सिचुएशंस पे हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं रिजल्ट्स पर। जिन्होंने भी दवाइयां ली है, जिनको भी उससे रिजल्ट्स मिले हैं, दैट इज द वर्ड ऑफ माउथ फॉर होम्योपैथी।
साइंटिफिकली अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी तक ही सीमित है और जहाँ पर एटम्स और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर होम्योपैथी कई बार फिजिक्स के नियमों को थोड़ा सा डिफाई कर रही है। वहाँ हमारे लिए दिक्कत जाती है, हम उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते साइंटिफिकली। उसी वजह से रिजल्ट सबसे कम चीज बन जाती है, जहाँ पे एलोपैथी कई बार काम नहीं कर पाती है, वहाँ पर होम्योपैथी काम करती है, which is getting acknowledged। दिन ब दिन कई एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी अभी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे स्कीम में अगर मैं होम्योपैथी के जो एलोपैथ्स है, जो काफी क्या बोल सकते हैं फेमस लोग हैं, वो होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर मनु करके एक है, मुंबई के क्राफ्ट मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी के हेड थे। ही प्योरली यूजेस होम्योपैथी। अमरावती में डॉक्टर ताजी है, ही इज एमबीबीएस पर्सन डूइंग होम्योपैथिक प्रैक्टिस। काफी ऐसे डॉक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आई देयर परमिशन टू डिस्क्लोज देयर नेम, बट बहुत सारे एलोपैथिक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ्स है जो होम्योपैथिक दवाइयां भी लेते हैं और पेशेंट्स को लिख कर भी देते हैं। सो यहाँ से ये जो फ्रैक्चुरेशन और सकशन, ये दो मेथड्स की वजह से कई बार साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए दिक्कतें जाती थी, बट आजकल काफी कुछ आ चुका है। अगर आपको इसके बाद डिटेलिंग से अगर चाहिए, आप बाबा एक पुराने एक्सपेरिमेंट्स काफी से पेपर्स है पूरे प्रेजेंट करके उसके बारे में मार्किंग किया हुआ है मॉडल्स के अंदर है, जहाँ पे ये एक क्लेम था कि उनका दवाई जो है वो प्लासिबो इफेक्ट हो, वो प्लासिबो इफेक्ट को उन्होंने काफी हद तक के किया है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जापानीज साइंटिस्ट लोगों ने भी किया था, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि एस्पैरागस नाम की जो फंगस होता है, उसके लिए उन्होंने कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल किया था। वो जो था उसके अंदर में उन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म चेक करने की थी माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उनको समझ में आया कि जैसे जैसे पोटेंसीज बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे सिंथेटिक पावर बढ़ते जाता था, ऑटोमेटिकली क्या होता था कि वो जो क्रिस्टल्स थे, क्रिस्टल्स अपने शेप चेंज करते थे। अगर वो सिर्फ पानी था और वो कुछ और नहीं था, तो क्रिस्टल्स अपने चेंज उसका अपना शेप कैसे चेंज कर रहे थे, हर बार वो अपने अपने क्या बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूलर वेट्स थे वो भी डिफर करना शुरू हो चुके थे। सो बट उस काफी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, काफी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। साइंटिफिक लेवल पर उन्होंने बोला कि नहीं, इसके काफी प्रूफ नहीं है, प्लीज ब्रिंग द प्रूफ्स एंड ऑल। तो ये ऐसे कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है, नहीं है होम्योपैथी में। और बाकी प्रैक्टिस के अंदर में जो कॉर्पोरेट फंड्स आता है वो काफी होता है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें जाती है। सो दिस इज सकशन एंड ट्राइचुरेशन। सो होम्योपैथी में जो पोटेंसीज का इस्तेमाल होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोटेंसीज यूज्ड इन होम्योपैथी बेसिकली। दिस इज डेसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल एंड डेसिमल स्केल। तो ये तीन किस्म की स्केल्स का इस्तेमाल होता है इसमें। सो ट्राइचुरेशन मोस्टली 10x तक के ही चलता है। सो ये काफी डिटेल्स होता है, फिजिकली काफी मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर में। तो डेसिमल स्केल के अंदर हम 10x तक के चलते हैं। सेंटिसिमल स्केल्स बनाने के लिए आप सफिशिएंट का इस्तेमाल करना होता है। तो बहुत यहाँ पर 100x तक के आप पोटेंशियल्स को रेज करते जाते हैं एंड आप जिस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की पोटेंशियल्स होती है जैसे एलोपैथी में होती है। तो डेसिमल स्केल इन्वेंटेड ने उसका पूरा वर्कआउट किया था। सेंटिसिमल स्केल वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर केंट, जेटी केंट, जेम्स टाइलर केंट। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। इट वन ऑफ द पॉपुलर स्केल बीइंग यूज्ड इन होम्योपैथी। से शुरुआत होती है एंड इट गोस टू 1 लाख एक्स तक है। फाइनल लेवल तक लेकर जाती है, तो बहुत ही एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है randomization of point of view. That was also invented by Dr. Kenneth. मैंने ये दो सिस्टम्स को इजाद किया, बट मैक्सिमम जो यूज होती है वो 100x के हिसाब से यूज होती है। इतनी इजीली मिलती है, ऑफर करना होता है, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। ये पॉसिबल जरूर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है ये सब चीजें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स जो यूज होती है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपको बताऊं कि स्टैटिस्टिकल पोटेंशियल स्पेसिफिसिटी का पिक्चर्स को एक्सप्लेनेशन है।
सो मदर टिंचर आपने सुना रहेगा, काढ़ा सुना रहेगा, बेसिक जो बेस बेस होती है, जो भी चीज का जैसे काढ़ा अगर ये है, तो होम्योपैथी में हम अलग अलग मेडिसिन अलग अलग ड्रग सोर्सेज को एक जगह यूज नहीं करते हैं, सिंगल मेडिसिन सिंगल यूज होता है होम्योपैथी में। आयुर्वेद में अलग अलग चीजें मिक्स करके काढ़ा बनाया जाता है, अलग अलग चीजें मिक्स नहीं होती। सो मदर टिंचर जो होता है दैट इज द बेस वन, दिस इज कॉल्ड एज क्यू, दैट इज थीटा और क्यू, दैट इज द बेस वन। सो मदर टिंचर में से वन वन पार्ट ऑफ मदर टिंचर इज टेकन, 99 पार्ट्स ऑफ वाटर और 10 उसको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। दिस इज वन सी, यहाँ पे वाटर टेस्ट किया गया है, बट अभी आजकल जो दवाएं यूज होती है इसके अंदर में रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज होता है। सो 99 पार्ट्स ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और उसके बाद में 10 सेकंड्स दिए जाते हैं, जो मैंने आपको इसके पहले का ये जो बताया था। ये सेकंड तरीके से रबर पैड के ऊपर में उसको 90 डिग्री के हिसाब से 7.5 केजी का वेट लगाकर उसको 10 टाइम्स उसको जर्क दिए जाते हैं, एंड ये जर्क्स के साथ में ये 1 सी की एक पोटेंसी तैयार हो जाती है। ठीक है, वहां से फिर 1 सी की पोटेंसी में से अगेन वन पार्ट ऑफ 1 सी इज टेकन, 99 पार्ट्स ऑफ रेक्टिफाइड अल्कोहल इज टेकन, उसको फिर 10 सब्ट्रैक्शन दिए जाते हैं और उससे 2 सी बनता है। 2 सी में से भी वन पार्ट लिया जाता है और धीरे धीरे से आगे बढ़ते जाके 100 सी तक के 200 सी 1000 एम 10,000 एम तक के भी बनती है दवाइयाँ, जैसे जैसे आपको नीड होती है उस हिसाब से। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सर्टिफिकेट कैपेसिटी। अगर हम एक स्केल के हिसाब से देखा जाए कि भाई अगर ड्रग मटेरियल कंसंट्रेशन के बेसिस पर देखा जाए, तो यहाँ से पेट ठीक अपोजिट वे में चलता है। जैसे हम अगर एलोपैथी में देखते हैं, तो एलोपैथी में हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई 5 ग्राम से शुरुआत होती है, फिर 10 mg आता है, फिर 20 mg होता है, 40 mg होता है, 100 mg, फिर 250 mg का। मुझे याद है मैं जब छोटा था, मुझे कभी बुखार आता था, मेरे मॉम डैड दोनों भी एलोपैथिक डॉक्टर्स है, तो वो मुझे जब दवाइयाँ देते थे तो क्रोसिन 250 मिलीग्राम की दिया करते थे, आजकल क्रोसिन 1000 मिलीग्राम की आ चुकी है। तो ये चीज होती है। होम्योपैथी में ठीक उल्टा होता है, होम्योपैथी में कंसंट्रेशन कम होते जाता है, लोअर लेवल पर हो जाता है, ड्रग मटेरियल कम से कम होना शुरू होता है। उसका सिंपल में देखते हैं 50 mg 250 ये मटेरियल बढ़ते जाता है। सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर, बीच बीच में, मतलब कभी प्रेजेंटेशन दिख भी नहीं रहा है सर, मतलब दूसरे स्लाइड पर नहीं जा रहा है। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है I guess। हेलो सर, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर बीच में, मुझे मैसेज भी आया तो वो हेलो 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 मैडम आपकी आवाज आ रही है?
Hello. Yes, sir. Is it audible? Sir, it's audible, but it is not clear. Presentation जब continue हो रहा है सर, तो फिर वो बीच में voice चले जा रहा है, मतलब वो बहुत break हो रहा है, connectivity नहीं हो रहा वो. Okay. Sir, if you can join the mobile phone, you can present from desktop, and you can use Okay. the audio from mobile phone. तो वो और मोबाइल फोन का कनेक्टिविटी अच्छा रहता है, डेस्कटॉप से थोड़ा डिस्टरबेंस आता है. और डेस्कटॉप का आप म्यूट कर दीजिए और मोबाइल फोन का ऑडियो यूज कीजिए, तो उससे क्लैरिटी ज्यादा होती Okay. Yes, just a- Hello. है. तो सर डेस्कटॉप को म्यूट कर दीजिए सर. तो म्यूट द डेस्कटॉप माइक. Is it clear now? यस. हेलो. Yes, ma'am. हेलो. यस सर. Yeah, yeah. So, where I had So we were discussing the dilution. okay. So, I think so. Trituration and succussion has been clear. Okay, so starting with the scales, so I'm extremely sorry for this issue. This decimal scales होम्योपैथी के अंदर 3 किस्म के decimal scales का इस्तेमाल, जैसे एक decimal scale का इस्तेमाल होता है, एक centesimal scale होती है, and third one is the 50 millisimal potency. So, these are the potencies name. जो भी पोटेंटाइजेशन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम स्केल्स में डिफाइन करते हैं. सो डेसिमल स्केल वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर हैनेमन हिमसेल्फ, जिसमें हम 10x तक के ही जाते हैं. और सेंटिसिमल स्केल जो होती है दैट इज अराउंड 100x तक के जाती है दवाइयाँ, जहाँ पे डाइल्यूशन या सकशन के प्रोसेस के थ्रू हम जो डायनामाइजेशन करते हैं वो अराउंड 100x तक के. देन अगेन 50 मिलीसिमल पोटेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर हैनेमन हिमसेल्फ. उन्होंने इस चीज को अराउंड 1 लाख एक्स तक के लेकर गए. 10,000 एक्स से शुरुआत होती है और 1 लाख एक्स तक के लेकर गए हैं इस चीज को. सो ये काफी हद तक के कंट्रोवर्शियल रहा है. कई कई बार इन सब चीजों का इस्तेमाल इसके लिए होता है कि भी होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर में कोई किस्म से मेडिसिनल कंटेंट नहीं है उसके अंदर में, बट थैंक्स टू भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर जिन्होंने इन सब चीजों के अंदर में हेलो हेलो या Yes sir. थैंक्स टू भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, जिन्होंने होम्योपैथी के जो डायनामाइजेशन की प्रोसेस को उन्होंने समझा और उन्होंने उसके बाद में इन सब चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करी. सो दे हैड प्रूवन होम्योपैथिक मेडिसिन टू अराउंड 200x तक के जो दवाइयाँ गई है वहाँ तक कि उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि नैनो टेक्नोलॉजी तक की मेडिसिन उसके अंदर में आप देख सकते हो, या आप उसके अंदर में मेडिसिनल कंटेंट को डिफाई कर सकते हो कि भी देयर इज अ मेडिसिनल कंटेंट दोज मेडिसिन.
सो ये जो एक कंसेप्ट चल रहा था कि होम्योपैथिक मेडिसिन आर प्लासिबो, वो सब धीरे धीरे अभी वॉश आउट हो रहा है। बट स्टिल देर इज अ लॉट ऑफ नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बोलिए, या फिर इसको प्रूव करने के लिए जो भी डिफरेंट सोर्सेज की जरूरत है, वो सब हमको लाने की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी नीड लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम साइंटिफिक फील्ड आल्सो। सो जस्ट एक शॉर्ट में हम सेंटिसिमल पोटेंसीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर देख पा रहे हैं, सो दिस इज सेंटिसिमल पोटेंसी। सो सेंटिसिमल पोटेंसी के अंदर में अगर आप देखें, फर्स्ट जो बॉटल है उसके अंदर मदर टिंचर है। मदर टिंचर इज नथिंग बट द बेस मेडिसिन, ठीक है। तो ये बेस मेडिसिन जो होती है, ये जैसे हम आयुर्वेद में हम काढ़ा बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे आयुर्वेद में कैसे होता है, मल्टीपल दवाइयाँ एक इसमें मिक्स की जाती है। होम्योपैथी में मल्टीपल दवाइयाँ यूज नहीं होती, एक मेडिसिन सोर्स या एक ही सोर्स उस समय मदर टिंचर के अंदर में यूज किया जाता है दवाई बनाने के लिए। वो मदर टिंचर में से जस्ट वन पार्ट ऑफ मदर टिंचर इज टेकन एंड अराउंड 99 पार्ट्स ऑफ वाटर और हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं। और उसको फिर 10 सकशंस दिए जाते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पिक्चर बताई थी सकशन मशीन, इसके अंदर में 90 डिग्री तक के उसको जो हैमर टाइप की जो मशीन थी, उसमें मेडिसिन 7.5 kg का वेट के साथ में उसको जर्क दिया जाता है। सो 10 सकशंस मतलब 10 जर्क्स दिए जाते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट ये एक फर्स्ट 1C पोटेंसी फॉर्म होती है उसके अंदर, ठीक है। सो ये 1C बन जाने के बाद में इसमें से वन पार्ट लेकर फिर 99 पार्ट्स ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट और ये सब चीजें ऐड करके उसको 10 सकशंस देकर 2C बनाई जाती है। 3C बनाने के लिए सेम वन पार्ट ऑफ 2C लिया जाता है, और इस तरीके से आगे के हम मेडिसिन बनाते चलते हैं उसमें, ठीक है। सो अगर हम इसको कंसंट्रेशन स्केल पर देखा जाए कि भाई जो मटेरियल ड्रग मटेरियल कंसंट्रेशन पर हम देखा जाए कि इस तरीके से होता है, तो होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों के अंदर में ठीक उल्टा चलता है। एलोपैथी में जैसे हम देखते हैं कि भी कंसंट्रेशन जो होते हैं कोई भी दवाइयों के, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 5 mg का मेडिसिन होता है, देन 10 mg आता है, 20 mg के मेडिसिन होते हैं, 40 mg का होता है, देन 100 mg 200 mg, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है और 1 ग्राम तक के की दवाइयां जाती है। होम्योपैथी में ठीक उल्टा होते जाता है। यहाँ पे मेडिसिनल कंटेंट जो होता है उसका पावर, उसका कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाता है, एंड अलोंग विद दैट ये उसका जो पावर होता है वो एनहांस करना, उसके पोटेंटाइजेशन के थ्रू उसका पावर एनहांस करने की कोशिश की जाती है। सो अगर हम एक बेसिक वे में देखा जाए, जैसे हम देख सकते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती है वो धीरे धीरे पावर बढ़ते जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज के ज़माने में हम देखते हैं सुपर बग के बारे में बात की जाती है, एंटीबायोटिक्स एंड सुपर बग्स, ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। सो सुपर बग्स के लिए स्पेसिफिकली धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते जा रहा है। सो दे आर यूजिंग मोर एंड मोर कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। लाइक सिंपल सा एक एग्जांपल, जैसे मैं बचपन में मुझे बुखार आता था, मॉम डैड मुझे क्रोसिन दिया करते थे। क्रोसिन वॉज 200 mg, अभी 625 से तो शुरुआत होती है, और 1000 mg का क्रोसिन का टैबलेट आ चुका है इस समय। सो इट हैज़ बीन 4 फोल्ड्स। मैं कुलकर्णी सर के यहाँ पे, जो अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कुलकर्णी, इनके यहाँ पे जब इंटर्नशिप के लिए था, यूज टू यूज टैक्सिम इंजेक्शन 500 mg का। आजकल 1 मिलीग्राम से तो शुरुआत ही होती है, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, इस तरीके से यूज होता है। मोनोसेफ वगैरह ये जो इंजेक्शन होते थे, इसका कंसंट्रेशन काफी बढ़ चुका है। रिजेक्शन और रेजिस्टेंस इज फॉर्मिंग बाय द बॉडी। बट होम्योपैथी में उल्टा होते जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयों का पावर जो है वो धीरे धीरे एनहांस तो होता है, लेकिन उसकी जो ये है, क्या बोल सकते हैं, पावर जो है, या मेडिसिन, सॉरी, मेडिसिनल कंटेंट जो है वो कम होते जाती है उसके पोटेंसीज के हिसाब से। तो 6 से शुरुआत होती है, 6C है, 12C है, 30C है, 200C है, 1000C या 1M हम बोल सकते हैं उसको, 10M, 50M, इस टाइप की दवाइयाँ का पावर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। एंड वहां से उसमें मेडिसिनल कंटेंट तो कम होते जा रहा है, लेकिन उसका पावर बढ़ते जाता है। सो एक बहुत बेसिक फॉर्मुलेशन होम्योपैथी में यूज होता है कि जितनी लोअर पोटेंसी, मतलब जिसमें जितना ज्यादा ड्रग कंटेंट रहेगा, वो उतना पैथोलॉजिकली यूज होता है। जिसमें जितना ज्यादा पावर बढ़ाया गया है, लाइक पोटेंटाइजेशन यूज किया गया है, वो साइकोलॉजिकल मेडिसिन के लिए यूज होता है। इसका अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर बोलूं,
तो फॉर एग्जांपल जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक हम जिसको बोलते हैं, तो नमक अगर हम डेली में ही खा रहे हैं तो वो हमारे लिए दवाई के जैसा बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज दैट इज इन 100% क्या एक प्योर फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, इट्स अ बेस मटेरियल, बट इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिनल और व्हाट वी कैन से पैथोलॉजिकल एक्शन ऑन आवर बॉडी। लेकिन वही जब होम्योपैथी के अंदर में हम उसका पोटेंटाइज करते हैं, उसका पावर बढ़ाना शुरू करते हैं, तो स्लो एंड स्टडीली उसके सिम्टम्स आपको समझ में आएंगे कि उसके अंदर में काफी साइकोलॉजिकल पैथोलॉजीज को हील करने की क्षमता है उसके अंदर। Natramure is specifically used in hysteria type of condition, जहाँ पे पेशेंट साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस भी हो जाता है, dwells in past वाली सिचुएशन जहाँ पे पुराने ख्यालों के अंदर में फंसा पड़ा हुआ है, वहाँ की पोजीशंस में कंडीशंस के अंदर में होम्योपैथिक दवाई में नाट्राम्योर जैसी दवाई यूज जो टोटली इनर्ट है एक क्रूड लेवल पर, बट जब उसका पावर एनहांस किया जाता तो इट इज वर्किंग मार्वलसली। ठीक है, सो ये एक तरीका था कि जहाँ से हम ये समझ सकते थे कि कंट्रोवर्सीज जो बढ़ रही है, पावर मतलब कहाँ है, पावर बताइए, तो हम बोल सकते थे भैया आप सिर्फ रिजल्ट्स ही बता सकते हैं हम उसके ऊपर में, तो ये कुछ ये थे। बट देर आर फ्यू मोर पॉइंट्स जिसकी वजह से होम्योपैथी का भी हम उसको एक अलग तरीके से समझ सकते हैं कि हाउ इट इज साइंटिफिक। सो डॉक्टर हैनेमन ने एक चीज करी थी कि दवाइयाँ ली जाती है, दोज आर मोस्टली फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम दवाइयाँ खाते हैं, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, एंड देन वो बॉडी उसको एसिमुलेट करती है, एंड आफ्टर 20-30 मिनट्स उसका एक्शन शुरू हो जाता है। होम्योपैथी में उन्होंने उसी तरीके से ये किया कि जिस तरीके से अभी हम जो मेडिसिनल पोटेंटाइजेशन करते हैं, तो कभी जिन्होंने होम्योपैथिक दवाइयाँ ली है उनके सब उनको पता रहेगा कि कई बार वो पेट में जाती भी नहीं। हेलो। हेलो, सर वॉइस क्लियर है सर अभी? सर थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो वॉइस क्लियर है अभी। ओके ओके। सर there is a button for switch for turning on the speaker near the video button. तो 3 डॉट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टर्न ऑन स्पीकर आता है, तो उससे वॉइस और इंक्रीज हो जाएगी। ओके so, is it okay now? यस सर। ओके, सो डॉक्टर हैनेमन ने उस समय ये ऑब्जर्व किया कि काफ़ी जो दवाइयाँ यूज़ हो रही है, वो दवाइयाँ मोस्टली गैस्ट्रिक या डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू दी जाती है। सो इट टेक्स टाइम टू एसिमुलेट द मेडिसिन एंड हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। सो उन्होंने जब ये पोटेंटाइजेशन और ये सब चीज़ें करी, तो उस समय उनके ध्यान में आया कि अगर हम होम्योपैथिक दवाई को इस तरीके से एडमिनिस्टर करें कि जहाँ पे नर्व्स के थ्रू ये एक्ट होता है, सो इट विल बी फार बेटर। तो जिन्होंने होम्योपैथिक दवाइयाँ ली है उनको काफ़ी अच्छे से पता रहेगा कि जब भी हम दवाइयाँ लेते हैं, इट डजंट गो टू द डाइजेस्टिव ट्रैक, इट इट स्टार्ट्स इट्स एक्शन फ्रॉम द टंग इटसेल्फ। सो जो जो नर्व का ये स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन डायरेक्टली ब्रेन को जाता है, ब्रेन वहाँ से इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। सो इट बिकम्स अ फास्ट, जो एक कहावत है होम्योपैथी को लेकर भी, होम्योपैथी काफ़ी स्लो मेडिसिन है, जल्दी एक्ट नहीं करती है, इसलिए लोग एलोपैथी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि फास्ट करता है। तो ये उस चीज़ को डिफाई करता है कि भाई होम्योपैथी उससे भी ज़्यादा फास्ट है। प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्टर्स लोगों का, दरअसल जो लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ दे रहे हैं उनकी दिक्कत है, वो लोग उस उतने प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं बोल सकते, या उन्होंने उस तरीके से उतनी मेहनत करके वो दवाइयाँ नहीं चूज करी रहती है कि वजह से वो मेडिसिन इतना स्पीडीली एक्ट नहीं कर पाता है। सो दिस इज व्हाट फ्लॉ ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, homeopathic practice, you can say that. So the next part, it was
अनलाइक अदर, जैसे ये मैं क्लियर कर चुका हूँ कि इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू ये करता है। Just a sec. Almost all the drug sources which are used in homeopathy are single. जैसे मैंने पहले भी बताया कि मदर टिंचर जब हम बना रहे थे, सो जितने भी मदर टिंचर्स के जो एक ये थे, वहाँ पर एक मेडिसिन ही यूज होती है उस टिंचर के अंदर। अगर हम तुलसी से अगर कोई चीज बना रहे हैं, सो इट विल तुलसी का ही रहेगा, उसमें कोई चीज का नहीं रहेगा उसके अंदर। जैसे हम आयुर्वेद के अंदर में डिफरेंट है और अलग अलग चीजें यूज करते हैं, तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय जो चीजें होती है वो होम्योपैथी में नहीं होती है। सिंगल मेडिसिन से ही दवाई बनती है, दैट इज व्हाट इट इज। इवन उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी जो होता है, जब हम पेशेंट को भी देते हैं वो दवाई, तो वो भी सिंगल ही दी जाती है, इज नेवर एवर अ मिक्स्ड वन कि भी दो चार दवाइयां बना दी और चलो सर दर्द के लिए दे दिया, पेट दर्द के लिए दे दिया, वो दर्द के लिए वो दे दिया। सो एक सिंगल मेडिसिन ही इस्तेमाल होती है जो आपकी पूरी कंप्लेंट्स को कवर करेगा। सो अगेन यहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी आती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दवाई सब चीजों के लिए काम करे। सो जो केस टेकिंग का एक तरीका होता है होम्योपैथिक दवाइयों के अंदर में, जहाँ पे हम पूरा डिटेल लिया जाता है कि किसी पर्सन को हम किस तरीके से समझ सकते हो, उसके जो कंप्लेंट्स हैं। जैसे अभी कभी आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया रहेगा कि अभी काफी कोरोना से रिलेटेड काफी चीजें चल रही है, तो यू हैड ऑब्जर्व दैट मेनी पेशेंट्स हैज डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स। सर्दी खांसी बुखार तो सभी को कॉमन आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को डायरिया हुआ है, कुछ लोगों को कम इंटेंसिटी के साथ में बुखार आया है, किसी को बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में बुखार आया है, किसी को कॉफ ज्यादा था, किसी को ब्रेथलेसनेस ज्यादा था, किसी का SpO2 अच्छा था, किसी का SpO2 बहुत डाउन था। तो यहाँ पर आप एक कॉमन फॉर्मुलेशन कैसे लगा सकते हैं? जब पेशेंट के सिम्टम्स की ही ग्रेविटी कम ज्यादा है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, तो आप एक ही पावर की दवाइयाँ कैसे सबको दे सकते हैं? तो ये चीज के बेसिस पर होम्योपैथी का जो एक फॉर्मुलेशन इन्होंने डॉक्टर हैनेमन ने डिसाइड किया था, दैट वाज कि इट शुड बी अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ये पेशेंट की नीड के हिसाब से होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक कि भाई हमारे पास में अभी इससे नीचे का दवाई नहीं है तो आपको 500 पावर की खानी पड़ेगी, तो भले ही पेशेंट को 100 पावर की ही जरूरत थी, 100 मिलीग्राम की जरूरत, बट ही हैज टू टेक अराउंड 500 mg, और फिर जो बचे हुए 400 mg का साइड इफेक्ट है वो झेलते रहे। तो ये चीज ना हो, इस चीज के लिए उन्होंने पर्सनलाइज मेडिसिन का ज्यादा प्रेफर किया, एंड फॉर दैट उन्होंने एक केस टेकिंग का तरीका इजाद किया कि जिसमें हम पेशेंट का पूरा डिटेलिंग लेंगे। सिम्टम्स तो एलोपैथी वाले भी लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। सिम्टम्स उल्टा वो हमारे से ज्यादा बेटर लेते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, बट हम पेशेंट के सिम्टम्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं रादर देन अ डिजीज सिम्टम। लाइक कोरोना के सिम्टम्स तो सवाल ही नहीं, बट अगर हम पेशेंट के भी सिम्टम्स लेते कि भी उसके साथ में कितना वीकनेस है, किसी की जबान का टेस्ट जा रहा है, किसी को स्मेल का टेस्ट, सॉरी स्मेल जा रही है किसी की, तो उसके बेसिस पर मेडिसिन अलग अलग होती है। सो एक ही पैथोलॉजी के लिए वी कैन हैव नॉट मेनी मेडिसिन। Okay, so that was what personalized medicine और reputation जो होती थी homeopathic medicines के अंदर में, that was totally depending on sensitivity of the patient. So Hello. hello, Yes. Yes, yes. yeah. Uh, being a natural medicine, it has few dietary restrictions. तो जो dietary medicines की वजह से जो भी किया रहता था, जो भी मेडिसिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती यूज होती है, तो ये मोस्टली नेचुरल मेडिसिन होती है। नेचुरल मेडिसिन दो मिनरल्स भी, तो those are directly taken from the natural sources, those are not ever processed one, processed medicines नहीं होती है, तो इस वजह से उसके ऊपर में कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होती है। ये सब कुछ पॉइंट्स है होम्योपैथी को लेकर, और ये सारी कंट्रोवर्सीज होम्योपैथी को लेकर चलते रहती है कि भाई ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है, इस टाइप का सब चीजें रहती है। सो फॉर अगर हम इसको देखते हैं कि भी अभी होम्योपैथिक इसमें भी कुछ कार्पोरेटाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्ट बेस आ रहा है, जैसे आप फार्मास्यूटिकल बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें से आगे चल के आइदर अपने फार्मास्यूटिकल स्टोर्स ओपन करेंगे हम, तो कई बार जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जो होम्योपैथी के अंदर में, ये उसका एक छोटा सा ग्राफ है उससे रिलेटेड कि
किस टाइप के मेडिसिन या किस टाइप की चीजें इस्तेमाल होती है मोस्टली, आइदर लाइक टिंचर बेस्ड हो गया या डाइल्यूशन बेस्ड हो गया, ये सब चीजें उसके अंदर में, डाइल्यूशंस, बायोकेमिक्स हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, ये सब चीजें यूज होती है होम्योपैथिक फार्मेसीज के अंदर में। सो ये जो प्रोडक्ट बेस है ये अभी धीरे धीरे पेटेंटाइज हो रहा है, जबकि प्रैक्टिकली प्योर होम्योपैथिक फॉर्म में सिर्फ टिंचर्स, डाइल्यूशंस और बायोकेमिक्स, ये तीन ही चीज, ऑइंटमेंट्स बहुत कम यूज होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स टैबलेट फॉर्म्स जो आ चुके हैं, जिसको हम ड्रॉप्स बोलेंगे या फिर पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हो गए, ये काफी होम्योपैथी में कम इस्तेमाल होते हैं। बट nowadays everybody is seeking for patented products, उनको बना बनाया चीज चाहिए। डॉक्टर्स लोग भी थोड़ा सा कम मेहनत करते हैं इन सब चीजों को ये करने के लिए, सीधा सीधा लिख दो यार, पेशेंट जाके ले लेगा मेडिकल से। सो स्लो एंड स्टडीली थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी डाइल्यूशन हो रहा है अलॉन्ग विद दैट होम्योपैथिक मेडिसिन, एक थोड़ी सी दिक्कतें जा रही है। बट the future is getting brighter and brighter for homeopathy, because last 2 years में होम्योपैथिक जो कंज्यूम करने वाले लोग थे उनका उनकी तादाद काफी हद तक के बढ़ गई है। उन्होंने काफी हद तक के होम्योपैथी को एक्सेप्ट किया। जो पहले एक समझ हुआ करती थी कि भाई ये स्लोपैथी, तो जो खास करके जो मजदूर वर्ग हुआ करता था, जो लेबरर्स हुआ करते थे, वो मोस्टली प्रेफर करते थे एलोपैथी में, इंजेक्शन ले लो, गोली खा लो, रास्ते से लो। बट स्लो एंड स्टडीली इवन दे आर आल्सो प्रेफरिंग होम्योपैथी फॉर दैट। सो धीरे धीरे ये सब चीजें अभी चेंज हो रही है, सिनारियो इज गेटिंग चेंज। सो होम्योपैथी के लिए आगे चल के काफी से पॉइंट्स भी आएंगे। बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट, आई वुड रियली नीड योर हेल्प, कि बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे हमको प्रूव करने की जरूरत है कि होम्योपैथी रियली वर्क करती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग उसको मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट लगाते हैं, जहाँ पे हम उसको प्रूव नहीं कर सकते कई जगहों पर। तो उसको प्रूव करने का तरीका अलग होता है, हर सिस्टम को प्रूव करने का तरीका अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किलोमीटर को लीटर्स में नहीं गिन सकते, और लीटर्स को आप किलोमीटर में नहीं गिन सकते। सो आप एलोपैथिक स्टैंडर्ड्स को होम्योपैथी लगाकर आप होम्योपैथी की ऑथेंटिसिटी नहीं ढूंढ सकते। आपको होम्योपैथी के लिए अलग स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत है। और ये काफी हद से, काफी सालों से डॉक्टर जॉर्ज विटिलकॉस करके एक काफी बड़े डॉक्टर है होम्योपैथिक फील्ड में के, जो रिसर्च वर्क भी करते हैं, डॉक्टर राजन शंकरन और डॉक्टर जॉर्ज विटिलकॉस करके। इन लोगों ने काफी सालों से इसके लिए कोशिश करी है कि भी आप हमारे लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाइए जो होम्योपैथिक इसको मैच करेगा। एंड आफ्टर दैट यू गो फॉर दैट, एंड आप पता करिए कि सही में साइंटिफिक है या नहीं है। और अगर फिर उसमें फेलियर आता है, देन यू कैन ब्लेम अस कि हाँ भाई ये प्लासिबो है या ऐसा है। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को ढक दिया जाता है, एंड वी डोंट नो द डेटा रिलेटेड टू दैट। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी हद तक के होम्योपैथी को सपोर्ट किया। राइट नाउ मोर देन 80 कंट्रीज है जहाँ पे होम्योपैथी लीगलाइज्ड है, वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रैक्टिस की जाती है। स्लो एंड स्टडीली इट इज गेटिंग कवर्ड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एलोपैथी को कवर करेगा, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एलोपैथी इज एन इमरजेंसी मेडिसिन। सो जो इमरजेंसी मेडिसिन है उसको इमरजेंसी ही रहना चाहिए। उसको क्रॉनिक डिजीज में अगर यूज करना है तो आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, इस टाइप की भी डिफरेंट मेडिसिन को यूज करके पेशेंट का भला किया जा सकता है। एट द एंड ये सारी चीजें जो होती है, ये हम पेशेंट के भले के लिए कर रहे हैं, रादर देन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि जहाँ पे एक कारपोरेट कंपनी हर साल अपना बजट या प्रॉफिट्स को ये करती है, इस वजह से सारी चीजें हो रही है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये हमको या हमारे जो देशवासी है, सब लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा अगर हम सारी सिस्टम्स को एक ही लेवल पर लाकर वर्कआउट करेंगे। सो विद दैट आई थिंक सो आई हैड कंक्लूडेड माई सेल्फ। अगर कुछ कंप्लेंट्स रहती है, सॉरी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आप श्योरली मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। सर, हेलो सर, Thank माय वॉइस इज क्लियर? या सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कि आपने बोला कई सारे क्रोनिक डिसीजेस है जिसमें होम्योपैथी मेडिसिन यूज की जाती है और काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उसमें। तो क्या होम्योपैथी मेडिसिन सिर्फ ह्यूमंस पे यूज होती है या फिर एनिमल्स पे भी यूज कर सकते हैं सर? हाँ, अभी कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, जो यूएस बेस्ड डॉक्टर्स है, दे आर यूजिंग होम्योपैथी ऑन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स आल्सो। होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए अगर आप
देखोगे तो कुछ ऐसी भी किताबें आपको मिलेगी जो खेती में भी यूज होती है, जो फ्लावर्स की जो खेती करते हैं, वहाँ पर भी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। बट टू बी फ्रैंक, हम्म। ह्यूमंस पर सबसे ज्यादा उसका अच्छा असर रहा है उतना ही के, बिकॉज जो भी दवाइयाँ प्रूव करी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैं इसमें से मिस आउट कर दिया आपकी वजह से, मुझे ध्यान में आया, दैट इज दैट कि जैसे हम एलोपैथी में जो भी ड्रग प्रूविंग होता है वो दरअसल हम गिनी पिग्स पर करते हैं। होम्योपैथी में वो डायरेक्टली इंसानों पर किया जाता है। दैट्स व्हाई होम्योपैथिक मेडिसिन में जब भी हम दवाई देना है तो उसका एक माइंड का एक स्टडी कर कर ही दिया जाता है, पर्सनालिटी वाइज वो मेडिसिन दी जाती है। सो एनिमल्स का पर्सनालिटी हमको नहीं पता, सो वी हैव टू गो ग्रॉसली। बट हाँ, कुछ डॉक्टर्स लोग इसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दे आर गिविंग मेडिसिन। लाइक डर्बी के जो हॉर्सेस होते हैं उनको होम्योपैथिक दवाई दी जाती है उनका परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, रनिंग, उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए वगैरह। ये सब चीजें हो रही है इस समय। Sir, is there any medicine for paralytic ileus condition? सी देर आर मेडिसिन होम्योपैथी में। अब देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, कोरोना वायरस तो अभी आया, तो 1 1.5 साल हो गया समझ, कोरोना को जान। होम्योपैथिक दवाइयाँ 200 साल से है, बट आर्सेनिक लोगों ने पहले ही शुरू कर दिया था, बहुत सारी जगहों पर उसका इस्तेमाल भी हुआ, कुछ जगहों पर ये भी हुआ, कुछ गलत धारणाएं भी फैलाई गई कि आर्सेनिक खाओगे तो कोरोना होगा नहीं, तो गलत था पार्टी, शुडन। सो ये जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हम मैं जैसे आपको बताया कि मेडिकल कंडीशन से ज्यादा पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, वो पेशेंट को सिम्टम्स को मैच कर कर अगर हम ये करते हैं तो उस हिसाब से दवाइयाँ दे सकते हैं। अब इसमें 3 चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयुर्वेद को भी देखते हैं तो आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 चीजें होती है, होम्योपैथी में सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस 3 चीजें होती है। अगर पेशेंट सिफिलिटिक स्टेज में, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो चुका, जहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे वापिस से रीगेन कर पाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर होम्योपैथी को भी लिमिटेशंस है। हाँ, बट इतना ही है कि उसका वेजिटेटिव लाइफ जितना रहेगा उसको कम किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 100% भले ही मदद ना कर पाए, बट जो एक एलोपैथिक इसमें जो बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है पेशेंट्स को ऐसे टाइम पर, फिजियोथेरेपी और बहुत सारी अलग अलग चीजों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, उतनी सब चीजों की होम्योपैथी में जरूरत नहीं पड़ती। हेलो। Yes, sir. Thank you very much, sir. Yes, Galan ma'am. डॉक्टर राहुल सर, सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। इट इज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। सर जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन में जैसे आपने बताया कि एलोपैथी के कंपैरिजन में इसमें जो ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, हम डाइल्यूशंस करते हैं जैसे 10x 100x। तो सर उसमें एक्टिव उसमें वाटर जैसे यूज किया जाता है, कोई सॉल्वेंट जिसमें उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लाया जाता है, लाइक वी से वाटर हैज अ मेमोरी। तो सर ये तो हम डेली लाइफ में भी जैसे यूज करते हैं, तो वो हमको अफेक्ट करता है क्या? जैसे वो हमारे हाँ, सही बात है। हेलो। देखिए कैसा ये असर करता है, मैं ये बोलूँगा, जैसे कैसा है, बॉडी हमारी यूज टू हो जाती है बहुत सारी चीज। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि नमक, नमक इज अ इनर्ट एट अ क्रूड स्टेट, हम डेली नमक लेते हैं हमारे खाने में, है ना? बट वही हम जब उसको पोटेंटाइज करते हैं, उसकी पावर को एनहांस करते हैं, डायनामाइजेशन करते हैं, तो इट वर्क्स लाइक एनी डैम थिंग इन अ साइकोलॉजिकल स्टेट। फीमेल रेमेडी है, हिस्टीरिया जैसे कंप्लेंट्स को कवर करती है, कई बार जो गायनिक कंप्लेंट्स होती है उसको भी काफी हद तक क्या वो कवर करती है उसमें। बट वही नमक डेली में वही लेडी अगर खा रही है तो शी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलीफ आउट ऑफ दैट, ठीक है? तो मेडिसिनल कंप्लेंट्स जैसे जैसे ये होते चलेगी, जैसे अभी मैंने बताया कि डायनामाइज हो रहा है, और हम जब इनर्ट सब्सटेंस खा रहे हैं, बॉडी को इनर्ट सब्सटेंस की आदत होती रही। बट अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो उनके इसमें एक श्लोक है, इसको अन्न है पूर्ण ब्रह्म जो बोलते हैं। So basically, अन्न है पूर्ण ब्रह्म बोले तो it's like a medicine only. Your food is like a medicine. If it is taken in a very balanced way, in a very specific way, it becomes a medicine. But आजकल हमारा फूड उस तरीके का रहा नहीं है। हमारा फूड भी अभी जेनेटिकली म्यूटेटेड है, हम जीएमओस खाते हैं, हमारे खाने में भी नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं। सो हम फल के नाम पर सिर्फ गर खा रहे हैं, उसके अंदर में कोई टेस्ट नहीं होता है। सो जो चीज मिलनी चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल पाती है। दैट्स व्हाई देन वी नीड मेडिसिन्स। सो वी नीड मेडिसिन्स एट अ वेरी लोअर लेवल, हमारी बॉडी जो है एनर्जी लेवल पर चलती है। होम्योपैथी का जो बेस है कि जहाँ पर हम एनर्जी लेवल पर चल रहे हैं, सो वो एनर्जीज को एनहांस करने के लिए इन मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, और बहुत छोटे छोटे स्टिमुलेशन की जरूरत।
I hope I had Yes. cleared your idea. Yes, sir. हेलो सर, वाटर को भी जैसे देखा गया कि काफी लोग पानी को जैसे रख कर एंड उसको बोलते हैं कि दैट दिस इज प्योर एंड दिस विल हील, सो इज दिस अ काइंड ऑफ थेरेपी कि पानी को बोलना कि it will cure us? Some people have a belief that if we instill these thoughts in the water, it cures us. See, there is a concept regarding this कि पानी से ही काफी चीजें सॉल्व हो सकती है, और पानी को हम जो पंच तत्व बोलते हैं कि वे 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, तो उसमें किया जाता है। बट यहाँ पर जो बॉडी में जो भी बीमारियां रिफ्लेक्ट कर रही है, जो क्रिएट हो रही है, वो सब चीजें सभी चीजों का इम्बैलेंस है, नॉट ओनली वाटर। मतलब हमारा शरीर जब बीमार पड़ता है तो सिर्फ पानी के ही गड़बड़ हो रही है, आपके सोडियम और आपके पोटेशियम के इलेक्ट्रोलाइट्स के ही इम्बैलेंस हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ में आपके टिश्यू पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट वाटर के बेसिस पर कंप्लीट क्योर या कंप्लीट हीलिंग मुश्किल है। हाँ, कुछ कंडीशंस होती है, मैंने देखा है कुछ कंडीशंस के अंदर में जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटर का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने क्या बोल सकते हैं, करने की कोशिश करी, ने उसको वीडियो यूट्यूब के ऊपर में भी तो ये भी चीज मेमोरी रहती है। सो ये सब चीजें हो रही है, बट फॉर क्रूशियल डिजीज कंडीशन अभी तक इट हैज नॉट येट बीन प्रूवन। सो उसके ऊपर में शायद एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो धीरे धीरे आइडिया और क्लियर होते चलेंगे, बट अभी फिलहाल की पोजीशन में उतना डेटा नहीं है। Okay. Okay. Thank you so much, sir. Yes, I welcome all the questions from the students. अगर आप में से कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं. Any questions related to homeopathic medicine? Yes, you can post on the chat box also. Okay. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much for sparing your valuable time for us. So you've given a wonderful explanation on homeopathic medicine. You have provided us with the clarity how homeopathic medicines are made and how it works. I'm thankful to us for sparing your valuable time to us with us, and I'm also thankful to our faculty members and all the dear students for listening with patience. Thank you so much.